بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شام تک نیوز چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسا گمبھیر مسئلہ آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں جو نہایت شکستہ ریختہ گاؤں سرجا مرجا، جو سرحد پر آخری گاؤں ہے پنجاب کے جنوب مشرق میں۔ گاؤں تو پسماندہ اپنی جگہ پہ ہے، یہاں کی بجلی بھی بند ہے، اس کے بارے میں آپ کو ہم لے کر چلیں گے گاؤں کے اندر۔ لیکن جو ان کی موجودہ صورتحال ہے سڑک کے حوالے سے، وہ انتہائی خراب ہے، اور یہاں پر لوگ گزرتے ہوئے لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، لوگ بہت زیادہ پریشان حال ہیں۔ یہاں پہ جو ڈلیوریز ہوتی ہیں خواتین کی، ان کے حوالے سے بھی ان کے بہت سارے مسائل ہیں۔ تو ان کو جو درپیش مسائل ہیں ان کے حوالے سے ہم یہاں کے مکینوں سے بات کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا پریشانیاں ہیں اس حوالے سے۔ تو چاچو جی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح کے مسائل دیکھتے ہیں اس سڑک کے حوالے سے، اور آپ حکومت بالخصوص پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر جی انہوں نے پیغام تے ہوئی آ کہ سڑک بن جائے۔ آ جڑیاں سانو دھیاں بھੈਣਾਂ جاندیاں گٹیاں تے پتھر پیا، اے پتھر موٹر سائیکلاں تو تھلیوں نکل نکل کے پیراں 'ਚ ਵੱਜਦਾ۔ جے کوئی رشتہ دار آਉਂਦਾ تے وہ بھی نہیں ਆਉਂਦਾ، تے جے ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜੇ ਮਰਗ ਮੁਰਗ 'ਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲਾ ਛੇਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਆ۔ جی یہ بتائیں کہ آپ مریم نواز صاحبہ کو اس کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آج کل وہ بہت متحرک ہیں، دیکھ رہے ہیں وہ صفائیاں کروا رہی ہیں گاؤں میں، کبھی نہیں دیکھا ہم نے۔ یہ تاریخی اقدامات ہیں جو وہ اٹھا رہی ہیں، تو آپ ان کو درخواست کیا کرنا چاہیں گے اس کے حوالے سے؟ ਇਹੋ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਆ ਰੋਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੱਤੀ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਨਾ ਸਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਨਾ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ। ਅੱਜ ਆਪ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬੀਬੀ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਸਰਜੇ ਮਿਰਜੇ ਦਾ۔ جی مریم نواز صاحبہ، آپ سن رہی ہیں اس بزرگ نے جو پیغام دیا ہے، تو یہ لوگ پریشان حال ہیں، بالکل پریشان حال ہیں یہ واقعی حقیقتاً۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو ذمہ داری ہے وہ مریم نواز صاحبہ پر آتی ہے، کیونکہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں پنجاب کی، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔ تو آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ ان لوگوں کی یہ جو پریشانی ہے جس سے یہ دو چار ہیں، اس کا ازالہ کیا جائے۔ جی بھائی صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ متحرک ہیں، اور اس جو ہمارے حلقے کے جو ایم پی ہیں، ایم این اے ہیں، سردار ایاز صادق صاحب، وہ تو ازالہ نہیں کر سکے، اب تک ہمارے دکھوں کا مداوع نہیں کر سکتے۔ لیکن جو مریم نواز صاحبہ ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مجھے کبھی امید ہے کہ وہ لبیک کہیں گی انشاءاللہ، کیونکہ ان کے جو کارنامے ہیں آج کل فی الفور وہ جو لوگوں کی تکالیف ہے ان کا ازالہ کر رہی ہیں۔ امید ہے اس تکلیف کا بھی ازالہ کہیں گی جو بہت سارے ڈھیر سارے لوگوں کو جس کی تکلیف ہے۔ تو آپ اس سڑک کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے مریم نواز جی صاحبہ کو؟ کہنا چاہتے ہیں جی اپنا مطلب سڑک ساری بنا دیتی جائے، لوگ بڑے پریشان نے جی۔ آخری پنڈ ہے بارڈر دے اتنے سرجا مرزا جڑا جی، اتنے کوئی والی وارث نہیں آیا انہاں دا، تے بیچاریاں نوں بتی نہیں آیا 20 دن تو اج مہینہ ہی ہو گیا جی۔ روزے نہیں رکھے جا رہے، بچیاں دی گناہ ایک دو دا ہوئے گا، چاہوں دا ہوئے گا، لیکن وہ دی سزا سارے پنڈ نوں مل رہی ہے جی۔ نہ تے اتنے بجلی ہے، نہ اتنے پانی ہے، نہ ادھر جی سڑک کو آ رہی ہے، رستہ کوئی نہیں ہے گا جی۔ مریض نے وہ بلک رہے نے بیچارے جان آؤ۔ تو مریم نواز کے یہ اپیل ہے جی ساری سڑک دا کچھ کیتا جاوے جی، انہاں لوکاں دی اپیل دے اوتے اپنا آواز اٹھاؤندے نے جی، انہاں دی آواز سنی جاوے، دار رسی کیتی جاوے جی۔ یہ سڑک دا ہی ہے، ہور تے کوئی نہیں جی۔ اللہ پاک مریم نواز نو ایدا صلہ دے گا جی انشاءاللہ۔ مریم نواز صاحبہ، آپ سن رہی ہیں کہ بھائی صاحب نے یہ بات کی ہے کہ آپ ان کی تکالیف کا ازالہ کریں گی تو اس کا صلہ آپ کو اللہ دونوں جہانوں میں عطا کرے گا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ ان کی تکالیف کا ازالہ ضرور کریں گی۔ نوجوان یہاں پر کھڑے ہیں بھائی، ان سے پوچھتے ہیں، یہ بھی یہاں کے مکین ہیں، وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان حالات کو؟ یہ جو سڑک خستہ حال ہے یہاں پر ٹوٹی ہوئی ہے، سڑک کا بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، اور یہاں کی بجلی بند ہے، کئی ہفتے گزر چکے ہیں، جبکہ یہاں پر مویشی لوگ رکھے ہوئے ہیں، ہزاروں مویشی ہیں، کس طرح سے ان کی دیکھ بھال ہو رہی ہے، کس طرح ان کو چارہ ڈالا جا رہا ہے، کس طرح ان کو پانی پلایا جاتا ہے، یہ تو یہی لوگ جانتے ہیں بیچارے جو اس کرب سے گزر رہے ہیں۔
तो फिलहाल हम इनसे बात करेंगे जी। ये जो सड़क है, सड़क के हवाले से भाई क्या कहना चाहेंगे आप? बत्ती 2 माह हो गए, बत्ती कटी है हमारी। मवेशी भूखे मर गए, पानी नहीं है, हम लोग आ जा नहीं सकते, हमारी बाइकें खराब होती हैं, गाड़ियां खराब होती हैं। हम तो यही कहेंगे कि जल्द से जल्द ये काम हो जाए। मरियम नवाज साहिबा आजकल बहुत मुतहरिक है पंजाब के अंदर, और वो एक रोल मॉडल बन चुकी हैं दूसरे वज़रा आला जो मुल्क हैं हमारे तीनों सूबों के, उनके लिए रोल मॉडल बन चुकी हैं। तो मरियम नवाज से आप क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे सड़क के हवाले से? मरियम नवाज को हम यही कहना चाहेंगे कि भी ये हमारी जल्द से जल्द जो सड़क है ये तमीर होनी चाहिए। और दूसरा, बत्ती भी हमारी 2 माह हो गई बंद है, ये भी जल्द से जल्द उनसे कहें भी हमारी बत्ती भी चालू करवाएं गाँव की। जी भाई साहब, आप देख रहे हैं इस सड़क को कि यहाँ पे दौरान डिलीवरी अमवात भी हो रही है ख्वातीन की। यहाँ पे बुजुर्ग गिरते हैं, उनके पत्थर लगते हैं पाँव में, पाँव जख्मी है। अभी एक बुजुर्ग बता के गया है कि यहाँ पे पत्थर लगा है और उसको बड़ा गहरा जख्म आया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जब बच्चे पढ़ने जाते हैं सुबह स्कूल्स में, तो उनके लिए बड़े गंभीर उनके मसाइल हैं। इस हवाले से बच्चों को चोटें आती हैं, बच्चे गिरते हैं, पड़ते हैं, उनको मुख्तलिफ जगहों पर चोटें आ रही हैं बच्चों को, और ये मुख्तलिफ परेशानियाँ इसके हवाले से। आप मरियम नवाज साहिबा जो आजकल बहुत एक अहम रोल अदा कर रही हैं इस मुल्क की सियासत में, पंजाब की सियासत में बिलखुसूस, और वो बहुत काम करवा रही हैं। जहाँ भी उनको कोई फरियाद पहुँचती है, कोई दरख्वास्त जाती है, वो फ़ौरन उस पर लब्बैक कहती हैं। तो उम्मीद है ये इस हवाले से भी वो ये गुजारिशात सुनेंगी और इस पर फ़ौरन लब्बैक कहेंगी। हम ये उनसे उम्मीद करते हैं। तो इस सड़क के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे मरियम नवाज साहिबा से? ਸਾਡੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਕਾਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਰਹਿਣ ਦਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਅਸੀਂ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ चल चल के। साडे पिंड एक स्कूल भी कोई नहीं है, सरजा मिर्जा साडा पिंड है। तो ये जो गांव के मकीन हैं उनसे हम पूछना चाहेंगे कि उनके लिए क्या मसाइल हैं इस सड़क के हवाले से। जी आ वेखो जी, ये सारी सड़क टुटी है, सड़क नहीं कोई बनांदा इत्थे। 1.5 महीने तो बत्ती गई है, सारे पानी डंगर उतरा ही है, डंगर ढाए आ उतरा ही है। डंगरां नूं आ छप्पड़ां चों गंदा पानी ढाईदा, डंगर साडे माड़े हो गए उदों दे। ते आ सड़कां भी सारियां टुटियां, इत्थों बच्चे तंग हुंदे जांदे जांदे। ते साडी दरखास्त ये है कि भी सरकार ये सड़क बनवावे ते नाले सानू बत्ती भी लगा दे। जी भाई साहब, आजकल मरियम नवाज साहिबा बहुत मुतहरिक हैं, जो अवाम के मसाइल हैं उनके लिए वो बहुत दर्द रखती हैं। तो आप सड़क के हवाले से मरियम नवाज साहिबा को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੱਤੀ ਆਵੇ, बस जी। यही और उन्होंने कुछ नहीं कहना। जी नाजरीन, अब हम गांव सरजा में पहुंच चुके हैं। ये ऐसा बदनसीब गांव है जिसकी बिजली मुनक़ता कर दी गई है। वापडा ने जिसकी बिजली काट दी है। ये बिजली जिन्होंने बिल नहीं दिया उनकी काटनी चाहिए थी, लेकिन ये बेकसूर लोग, इनका क्या कसूर है जिन्होंने बिल भरा है या जो टैक्स दे रहे हैं इस गवर्नमेंट को, वापडा को बिल दे रहे हैं, उनकी भी बिजली कट चुकी है। तो ये बिजली मुनक़ता हुए करीबन कोई 1 माह गुजर चुका है। यहाँ पे अक्सरियत मवेशी पालते हैं, दूध निकालते हैं, गवाले हैं, हजारों यहाँ पे मवेशी हैं जिनके लिए चारा डालना होता है, जिनको पानी पिलाना होता है। यहाँ मसाजिद में यहाँ की अजान तक नहीं होती, बच्चे बिलबिला रहे हैं, मवेशी बिलबिला रहे हैं। कहाँ से ये चारा कुतर के मवेशियों को डालें, कहाँ से पानी पिलाएं, और कहाँ से ये जिंदगी की जरूरियात पूरी कर सकें अपनी। बिजली के बगैर तो ये बिल्कुल ये पत्थर के दौर में जा चुके हैं। इन बुजुर्ग से हम पूछते हैं कि ये अब आप जानते हैं मरियम नवाज साहिबा मुतहरिक हैं पंजाब की तरक्की के लिए, तामीर के लिए, तो वो इन मसाइल को देख रही हैं और इनको हल भी कर रही हैं। आप मरियम नवाज साहिबा से क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से जो आपकी लाइफ मुनक़ता हुई पड़ी है? अहीं बेटा ठीक है, वो भला होवे, ओहदा जींदी रवे। मैं इस चीज की कसम खा के आना कि हालांकि मैं वोट भी ਉਹਨੂੰ ਆ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਜਾਸਤੀ ਹੋਣ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਢਹਿ ਮਰ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ
ਜਲੀਲ ਹੋਣ ਡਏ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਈ ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧੀਆਂ ਰਗੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਤੀ ਸਾਡੀ ਲਵਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਫਸੇ ਆ। ਚਲੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਿਛਾਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ PTI ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਆਇਆ ਉਹ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਖੋਨੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਾਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੀਏ ਵੀਰ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤਰਲਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਮਾੜੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦਿਆਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਣੇ। तो बुजुर्गों, आप मरियम नवाज साहिबा से क्या कहना चाहेंगे? ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਬੱਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਕੋਈ। जानना चाहेंगे कि ये किस कदर परेशान हैं, बिजली मुनक़ता हो चुकी है मुकम्मल तौर पर, और ये अब किसको पैगाम देना चाहेंगे जो इनकी बिजली जो मुनक़ता हुई पड़ी है वो दोबारा से चल पड़े, और इनके मामूलात ज़िंदगी जो मसाइल दरपेश हैं उनमें आसानी पैदा हो सके। जी, आप किसको पैगाम देना चाहेंगे? मरियम नवाज को। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? उसको तेरी माँ का वास्ता, ये हमारी बत्ती ये चालू होनी चाहिए, हम बहुत तंग हैं जी। हाँ जी। ते तेरी मेहरबानी है, तो गरीबों के खौफ करो। जी जी, मरियम नवाज साहिबा, आपसे गुजारिश है, आपने सुन लिया है, ये जो बुजुर्ग हैं इन्होंने आपको आपकी वालिदा मोहतरमा का वास्ता दे दिया है, तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है। और इतने इस कदर ये इनके हालात दगरगों हैं, इस तरह ये परेशान हैं, हालात अबतर हैं, तो मुझे कभी उम्मीद है कि आप इनके मसाइल को हल करेंगी और फिर और आप इनकी बिजली दोबारा से चालू करवा कर आप इनकी ढेर सारी दुआएं लेंगी। जो ये जो बिजली के मसाइल हैं इनसे दो चार हैं, आप हम तो अंदाज़ा कर सकते हैं, लेकिन आप जिन मसाइल का आप शिकार हैं, आप जिस वक्त से गुजर रहे हैं, उनके हवाले से आप ही बता सकते हैं, आपको क्या क्या मसाइल हैं इस हवाले से? तकरीबन सर हमारी जो लाइट गई है, तकरीबन 1.5 माह हो गया हमारी लाइट बंद की हुई है, और जो बंदे चोरी में मुलव्वस थे, जिनके ऊपर बकाया बिल थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जो 20 से 25 बंदे रेगुलर बिल दे रहे थे, किस्तें जमा करवा रहे थे, उनको ये इन्होंने सज़ा दी है। और तकरीबन 1.5 माह से ऊपर हो गया, मस्जिद में बच्चे पढ़ते थे, मदरसे में पढ़ाई होती थी कुरान पाक की, तो उससे भी लोग महरूम है, नमाज पढ़ने से महरूम है, घरों में तिलावत जो करते थे, जो कुरान पाक खोलते थे, उससे महरूम है। वजह क्या है? बिजली नहीं आई। और हमने MPA MNA से भी गुजारिश की थी कि हमारी लाइट बहाल कर दी जाए, ताकि ये हमारी जो परेशानी है दूर हो सके। लोगों ने किस्तों के ऊपर माल मवेशी खरीदे थे, एक बंदे ने 5-5, 6-6 लाख रुपए की भैंस खरीदी थी, कर्ज लेकर वो खरीदी थी, किस्तें उनकी जमा करवा रहे थे। तो एक मेरे भाई ने 15 लाख की 3 भैंसें खरीदी थी, तो तकरीबन 1 लाख से ऊपर उनकी किस्त थी, और अब वो दूध ही तकरीबन 50-60 हज़ार रुपए का दे रही हैं तीनों भैंसें। तो वो गरीब आदमी क्या करेगा? 1 लाख उनकी किस्त है और 50-60 हज़ार का दूध दे रहे हैं। वजह क्या है? भैंसों को पानी नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से दूध देना उन्होंने बंद कर दिया, और इस गांव के सिर्फ माल मवेशी से गुजारा होता था, और वो भी इस हमारी हुकूमत ने बंद कर दिया है। क्या वजह थी? बिजली बंद कर दी, जिसकी वजह से गरीबों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और यहाँ सारे लोग ही गरीब रहते हैं। तो हमारी MPA अयाज सादिक से भी गुजारिश है, MNA मलिक हबीब अवान से भी गुजारिश है, और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से भी गुजारिश है कि हमारे गाँव की बिजली बहाल कर दी जाए। ये सारा जो इलाका है, जो गांव में लोग रहते हैं, सारे गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, तकरीबन 1000-500 रुपए की दिहाड़ी लग जाए तो लग जाती, वरना नहीं। यही सिर्फ माल मवेशी से इनका गुजारा होता है। जी, शुक्रिया। आप देख रहे हैं हम गांव सरजा में मौजूद हैं, लाइट बंद है, यहाँ की बच्चे भी मौजूद हैं, यहाँ पे बेचारे मासूम बच्चे हैं, मासूम चेहरे हैं, नन्हे मुन्ने,
और बिजली मुनक़ता है बिल्कुल। मसाजिद वीरान पड़ी हैं, लाइट वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। लोग बेचारे पुरसाने हाल कोई नहीं उनका, सब परेशान हैं। तो ये हम यहाँ पे मगरिब हो चुकी है, हमने अफ्तारी भी इसी गांव में आकर की है। हम इनका दर्द मरियम नवाज साहिबा तक पहुँचाने चाहते हैं। तो हम जानना चाहेंगे इस ये आंटी हैं इनसे कि ये मरियम नवाज साहिबा को इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगी। नहीं, शुक्रिया। बेटी मरियम नवाज ਸਾਡੀ ਧੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧੀਏ ਤੂੰ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕ ਹੈ। ਨਲਕਾ ਇੱਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆਈਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਈਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਲਕਾ ਲਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਫਤਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਬੇਟੀ। ਨਲਕਾ ਗੇੜ ਗੇੜ ਕੇ ਬਾਜ਼ੂ ਸਾਡੇ ਪੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਪੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਪਾँव ਪੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਲੈ। नाजरीन, आए मैं आज आपको एक ऐसे शिकस्ता और रेख्ता गांव की तरफ ले जाता हूं जो लाहौर के जुनूब मशरिक में सरहद पर वाक़ एक आखिरी गांव है, जिसकी आबादी बहुत कम है और ये नहायत पसमानदा गांव है, जहां ज़िंदगी की आसाइशें तो दरकिनार, ज़रूरियात ज़िंदगी और रोज़मर्रा की ज़रूरी अशिया तक दरकार नहीं है। ना साफ़ पानी है, ना स्कूल्स हैं, ना सड़क है, ना सेहत आमा की कोई अदना सी सहूलियात भी उन्हें मैसर है। हत्ता कि कोई अताई डॉक्टर भी यहाँ मौजूद नहीं, जहाँ से ये कम अज़ कम अपने गले के दर्द और बुखार के लिए पेनाडोल तक ले सकें। और अब उन पर एक आफत और आन पड़ी है जिसका जिक्र हम ज़रा आगे चलकर करेंगे। सबसे पहले ही मैं यहाँ आपको उस गांव की तरफ जाने वाली सड़क के हवाले दिखाता हूँ। ये वो सड़क है जिसके लिए 19 दिसंबर 2021 को उस्मान बुज़दार साहब के लिए मैंने एक दर्द भरा कॉलम लिखा था, भला हो उनका, कि जिसके बाद उन्होंने मेरे दर्द दुख का मुदावा किया और हफ्ता भर ही में हंगामी बुनियादों पर इस सड़क पर काम शुरू करवा दिया। सरसब्ज और लहलहाती फसलों के दरमियान में से गुजरती हुई ये सड़क खूबसूरत मंजर पेश करने लगी। मेरा अंदाज़ा था कि सड़क 3 किलोमीटर होगी, इसलिए मैंने अपने कॉलम में 3 किलोमीटर सड़क का ही जिक्र किया। दिलचस्प बात यह है कि 3 किलोमीटर जहाँ तक सड़क मुकम्मल पैमाइश में आई, वहाँ तक उसे मुकम्मल किया गया। इन गरीब दियार और लाचार लोगों को अपने नसीब पर रश्क आ रहा था, मगर फिर अचानक किस्मत का वही खेल हुआ। बकौले शायर, किस्मत की खूबी देखिए, टूटी कहाँ कमंद, दो चार हाथ और लबे बाम रह गया। सड़क अब्बारी शरीफ खानदान की चौथी शख्सियत और पंजाब की पहली खातून वजीर आला मरियम नवाज साहिबा की है, मगर मैं यकीन से कहता हूँ कि आपके लिए सड़क आखिरी रकत साबित नहीं होगी। आप इन शिकस्त हाल लोगों की दुआएं ले लें। मुझे याद है जिन दिनों इस सड़क पर तामीर का काम हो रहा था, इस छोटे से गांव की मस्जिद में बुज़दार साहब के लिए ख़ास दुआओं का एहतमाम किया जाता था, जिसमें गांव के बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब शामिल होते थे। और इन दुआओं ही की बदौलत बुज़दार साहब इत्मीनान से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, ये लाहौर का एक छोटा सा गांव सरजा मरजा है जो सरहद पर वाक़ आखिरी गांव है। ये आपकी रियाया हैं और इनकी दादरसी आपका फ़र्ज़ है। आप इस पंजाब की धरती की बेटी हैं और पंजाब की रियाया के लिए आप एक माँ का दर्जा रखती हैं। इस खस्ता हाल सड़क की बदौलत माएँ ज़चगी के दौरान इसी पर दम तोड़ देती हैं और मैंने मरीज़ इसी सड़क पर बिलबिलाकर दम तोड़ते हुए देखे हैं। जबकि हमारे असलाफ के अंदाज़े हुक्मरानी का आलम यह था कि जब सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बादशाह बने तो उन्होंने ज़ारो कतार रोते हुए फरमाया कि अगर दरिया फ़रात के किनारे कुत्ता प्यास से मरा तो पूछ उमर की होगी। आप याद रखें, इस वक्त के हुक्मरान याद रखें कि अगर ये तकलीफ़ उठाने वाले ये मजबूर लोग हैं, बेबस हैं, आप इनकी तकालीफ का अजाला करें। देर आया दुरुस्त शायद, इस पर भी अमल किया जाए तो ये लोग उम्र भर इनकी नस्लें आपको दुआएं देती रहेंगी। बार बार रोड़ी पाई जा रहे ने और आलूदी रोड के साडी अखां च साडे चेहरे ते पेंदी नजरां तो लोग महरूम होंदे जा रहे ने इस वजह तो। ते बराए मेहरबानी साडी सड़क ते साडी बच्ची दा कोई हल होना चाहिए। साडी गुजारिश है गरीबां दी।